गुजरात के वडोदरा में योग निकेतन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में वडोदरा के एसएसजी ऑडिटोरियम में योग पर प्रवचन और संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वक्ता प्रकाश शाह ने हिंद के हिस्से और गांधी जी, डॉक्टर गणेश देवी ने भारत का लोकतंत्र और गांधी जी और डॉक्टर सुदर्शन आयंगर ने गांधी जी का कर्म योग विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित रहकर इन प्रवचनों का लाभ लिया। मुखर्जी એ મુસ્લિમ બહુલ બંગાળમાં એટલા બેચેન થઈ ગયા છે। શ્યામપ્રસાદ મુખર્જી જે પછી જનસંઘના સ્થાપક હોવાના હતા, એ મુખર્જી મુસ્લિમ બહુલ બંગાળમાં એમણે એમની ભાગીદારી રહી છે, એનો પણ ઉલ્લેખ કદાચ કરી, પણ એટલા બેચેન થઈ ગયા છે કે એમણે વાઇસરોયને લખેલા તે વખતના પત્રોમાં છે કે તમે ભારતના ભાગલા પાડો કે ના પાડો, પણ બંગાળનો પાડો। આઈ એમ કોટિંગ ડોક્ટર મુખર્જી, ધ ફાઉન્ડર ઓફ જોન્સન। આજના એક એમના પ્રતિમા પુરુષ પિતૃ પુરુષ જે પોતે એમાં સાવરકર અને મુખર્જી અંગે ઓરસ અનોરસ એમના મનમાં જે વિવેક હોય હું જાણતો નથી, પણ જે મુખર્જી નહીં કે મુખર્જી ભાગલા ઈચ્છતા હતા, નહીં કે મુખર્જી એકતાવાદી નહોતા, એમ નથી કહેતો, પણ બંગાળી ભદ્ર નેતાગીરી એમાં દેશબંધુ દાસનું એક વલણ અને પછી આગળ જતા મુખર્જીની એક બીજી બેચેની એ તમારા ધ્યાનમાં લાવવું। वडोदरा के चांदोद में हर वर्ष पारंपरिक रूप से 10 दिवसीय गंगा दशहरा महोत्सव मनाया जाता है। इस बार भी विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ नर्मदा जी को पवित्र और शुद्ध रखने का संकल्प लेकर गंगा दशहरा पर्व को संपन्न किया गया। 100 साल से पुरानी परंपरा के तहत जेठ महीने के पड़वा से लेकर दशमी तक गंगा दशहरा महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें पूरे राज्य से लाखों भाविक भक्त शामिल होते हैं और मां नर्मदा और गंगा की पूजा अर्चना करते हैं। रविवार को गंगा दशहरा महोत्सव के आखिरी दिवस पर डभोई विधायक शैलेश मेहता, उनकी पत्नी मीना मेहता, डभोई डीवाईएसपी आकाश पटेल समेत के पुलिस अधिकारियों ने उपस्थित रहकर ऐतिहासिक मल्हार राव घाट पर महाआरती समेत के धार्मिक आयोजनों में शिरकत करते हुए नर्मदा जी के जल को शुद्ध और पवित्र रखने का संकल्प लिया। लाखों भक्तों मां नर्मदानी ने मां गंगानी आरती पूजा अर्चना करी है। તમામ પર માં નર્મદાના માં ગંગાના આશીર્વાદ વર્ષે એવી પ્રાર્થના કરજો। સાથે સાથે ગુજરાતની જીવાદોરી કહેવાય માં નર્મદા, અને માં નર્મદાને આ 10 દિવસ સતત માઇક પર જાહેરાત કરવી પડે કે કોઈ કચરો ના નાખતા, કોઈ પ્લાસ્ટિકની થેલીઓ ના નાખતા, કોઈ પડિયા ના નાખતા, એ આપણે માટે શરમજનક કહેવાય। હું અહીંયા 12 માસ પધારનાર ભક્તોને વિનંતી કરું છું કે જ્યારે પણ આવો માં નર્મદાની ચોખ્ખાઈનું ધ્યાન રાખે। માં નર્મદા આપણી માં કહીએ છીએ, આપણી જીવાદોરી કહીએ છીએ, ત્યારે એને ગંદી ના કરીએ, એમાં કચરો ના નાખીએ, શ્રદ્ધાપૂર્વક એની પૂજા કરીએ, એમાં સ્નાન કરીએ। પણ જે આપણે એને ગંદી કરીએ છીએ, એમાં પવિત્ર થવા આવતા હોય ત્યારે માને ગંદી કરવો એ ખૂબ દુઃખદ છે। આ 10 દિવસ જે રીતે આપણે આને ચોખ્ખી રાખી છે, 12 માસ માં નર્મદા ચોખ્ખી રહે એવી આપ સૌ પાસે અપેક્ષા રાખું છું। गुजरात के महसाणा के विसनगर में वालम सर्वोदय आश्रम में नंदीधाम का स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के हाथों उद्घाटन किया गया है। गुजरात के ग्रीन एम्बेसडर जीतू पटेल ने पहले देरोल में ऐसा ही ऋषिवन बनाया था और अब उन्होंने यहाँ नंदीधाम का निर्माण किया है। नंदी को सुरक्षित रूप से रखे जाने के आशय के साथ ये पहल की गई है। तिरुपति फाउंडेशन और ग्रीन ग्लोबल ब्रिगेड द्वारा इस मौके पर विसनगर नगरपालिका को नंदी वैन भी भेज दी गई है, जिससे नंदी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सहूलियत होगी। આજના છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી મનમાં મનોમંથન હતું કે આ રખડતા નંદીઓનો કોઈ ધણી નથી, તો આજે અમે ધણી બન્યા છીએ। એનો જે આનંદ છે એ પુત્રના લગ્ન
વિધવાઓ સામે કર્યા એના કરતાં પણ 10 ગણો આનંદ આજે છે. અહીં 111 નંદી રાખવાનું આ વાલમ આશ્રમ અને ગ્રીન ગ્લોબલ બ્રિગેડ દર મહિને એને નિભાવવાનો ખર્ચ પણ આપશે અને આ એક સાધન પણ અમે એવું બનાવ્યું છે ભારતનું પ્રથમ કે કોઈ પણ નંદી આરામથી એમાં ચડી પણ શકે, ઉતરી પણ શકે, નંદીને એમાં ખાવાનું પણ મળી રહે, પાણી પણ મળી રહે. એ રીતે બધી રીતે શિવજીની કૃપાથી અમે સારો પ્રયત્ન કર્યો છે. આ વિચાર તો વર્ષોથી એ મગજમાં હતો જ કે ભાઈ આપણે નંદીના કાનમાં જઈને દરરોજ આપણે પ્રાર્થનાઓ તો કરીએ છીએ પણ નંદીને કોઈ સાચવતા નથી. એને પ્લાસ્ટિક જ ખવડાવે, આખી જિંદગી પ્લાસ્ટિક ખાઈને અને કતલખાને જ જતા આપણે જોયા છે. તો આ નંદીઓને પણ આપણે શિવજીના પ્રતીક સમા એ આપણી હિન્દુ ધર્મની સંસ્કૃતિ પ્રમાણે સાચવવા આપણી નૈતિક ફરજના ભાગરૂપે અમે આ આયોજન કરેલ છે. પહેલા તો વિસનગર શહેરને અમે નંદી મુક્ત કરવાના છીએ. 2 દિવસમાં વિસનગરના જેટલા પણ નંદી છે બધા જ અમારા વનમાં આવી જશે. અમે એનું નામ શિવ નંદી ધામ રાખ્યું છે. આ નામ આનંદીબેન જ્યારે અમે એમને લોખંડી મહિલા તરીકે જ્યારે અમે એમને એવોર્ડ આપ્યો મહારાજના હસ્તે દંતાલીના એ દિવસે બેને હમણાં નામ આપ્યું કે શિવ નંદી ધામ જીતું તું આ નામ રાખ. અને બેને પણ અમને પ્રોમિસ આપ્યું હતું કે ભાઈ અમે લખનઉમાં આ એક પહેલું શિવ નંદી ધામ બનાવીશું. તો અમે પણ બેનની પાસે 1 મહિના પછી જવાના છીએ અને ત્યાં પણ શિવ નંદી ધામ લખનઉમાં પણ બને એવી અમે બેન પાસે માગણી કરેલ છે. पावागढ़ में नेमीनाथ समेत के 7 जैन तीर्थकार की प्राचीन प्रतिमाएं हटाने पर वडोदरा में विरोध हो रहा है। समस्त वडोदरा जैन संघ द्वारा जैन संघ के संतों और अग्रणियों के साथ पावागढ़ में महाकाली मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग के साथ वडोदरा जिला कलेक्टर बीजल शाह को आवेदन देकर खंडित प्रतिमाओं की पुनः स्थापना की मांग की गई। इसके अंदर प्रतिक्रिया यही है कि हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान जो पूरा विश्व जैन अजैन वहाँ हमारी कुल देवियाँ हैं, देवी देवता हैं, तीर्थंकर हैं, उस तीर्थंकरों की प्रतिमा को एक ही प्रतिमा नहीं 7 प्रतिमा वहाँ पर उन प्रतिमाओं की एक सी दुर्दशा की है और कचरे के डब्बे के अंदर डाल दिया। ये आस्था का केंद्र है और ये हमारे भगवान के तीर्थंकरों के साथ में अगर ऐसी स्थिति होगी तो वहाँ ट्रस्टी कहाँ थे, मैनेजमेंट कहाँ था, मैनेजर कहाँ थे? इसके पीछे कोई शंका की बू भी आ रही है या इसके अंदर किसी का हाथ है? अगर इसके अंदर मैं आपके माध्यम से एक संदेश ये देना चाहूँगा कि समाज के अंदर जितने हमारे ट्रस्टीगण है, जितनी जैन समाज है, सकल संघ को वर्तमान समय में बाहर आना चाहिए। साधु भगवंत तो आ रहे, साधु भगवंतों की मर्यादा अपनी अपनी, पर श्रावकों की मर्यादा है कि वहाँ क्षेत्र में जाएं, वहाँ पर वार्तालाप करें। खाली कच्ची रोटियां सेकने से, मीडिया में आने से, फोटो खिंचाने से डेवलपमेंट नहीं होगा। નારાજની આક્રોશમાં છે અને આક્રોશનું કારણ એ છે કે વારંવાર અમારા તીર્થો ઉપર હુમલા થઈ રહ્યા છે. આની પહેલા પાલીતાણા થયું, જુનાગઢ થયું, સમરશિખર થયું, ઇન્દોરમાં પણ થયું હમણાં, અને આ પાછું કાલે પાવાગઢમાં અમારા નેમિનાથ ભગવાન 22મા તીર્થંકર કૃષ્ણ ભગવાનના કાકાના છોકરા થાય એમની મૂર્તિઓ તોડવામાં આવી. એટલે અમારો જૈન સમાજ ખૂબ જ આક્રોશમાં છે અને પાછું 15 દિવસ પહેલા કલેક્ટરને બધાને આવેદનપત્ર આપ્યું છે ભાઈ આ બધું કૃત્ય થવાનું છે, તો એ કલેક્ટરે આ આવેદનપત્ર અમારું માન્ય ના રાખ્યું અને કાલે કૃત્ય કરવામાં આવ્યું. એટલે જૈન સમાજ ખૂબ જ આક્રોશમાં છે, હૃદયથી પોતાની લાગણીથી આ આક્રોશ બતાવે છે, કારણ કે અમે હિંસામાં માનતા નથી, અમે અહિંસકવાદી છીએ. छत्तीसगढ़ की गोरेला पेंजा मरवाही की कोरबा लोकसभा की नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने चुनाव जीतने के बाद मरवाही विधानसभा में पहला दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकता और एकजुटता दिखाने पर उनकी सराहना की। जिस विधानसभा में 8 में से 7 विधानसभाओं ने मुझे इस बार जीत दी है और पालीताना खार के बाद हमारा मरवाही है जिसने सबसे ज़्यादा हमको जीत दी है। तो जहाँ जहाँ मैं अच्छे मतों से जीती हूँ, शपथ लेने के पहले इनका आशीर्वाद लेने और इनका आभार प्रदर्शन करने के लिए मैं आई हूँ। और ये जो चुनाव था ये बहुत बड़ी चुनौती थी। एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यहाँ सामने थी और हमारे विपक्ष में हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो शासन प्रशासन और राज्य सरकार सभी से हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता लड़े हैं और केन प्रकेट या साम दाम दंड भेद सभी तरीके की उन्होंने अपनाया, लेकिन उसके बाद भी हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अडिग होकर
कर्मठ बन करके और खुद सांसद बन करके लड़े हैं और विजय हासिल की है। तो ये जीत मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं को समर्पित करती हूँ। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद ने गांवों का दौरा कर जनता का धन्यवाद अदा किया है। बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जिसके चलते उन्होंने अलग अलग गांव घूम घूम कर उनके मतदाताओं का आभार प्रकट किया। लोकसभा चुनाव 2024 में नगीना लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद 1.5 लाख वोट से जीते थे और अब उन्होंने इस क्षेत्र की जनता के विकास की कटिबद्धता दिखाई है। आप ये भी जानते हैं कि लोग बड़ी मजाक बनाते थे, मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग आते थे, कहते भाई वहां तो इस पार्टी का आदमी जीतेगा, उस पार्टी का आदमी जीतेगा। कुछ लोग तो कहते हैं यार ये चप्पल वाला आदमी कैसे जीत जाएगा, ये तो गरीब आदमी कैसे जीत जाएगा। लेकिन आपने साबित किया कि जिसको जनता साथ देती है, चाहे वो चप्पल वाला हो या बिना चप्पल वाला, वो आगे बढ़ता है। लेकिन मैं भी आपको वचन करके कहता हूँ आपके इस गांव में और आप सबकी उपस्थिति में कि मैं जब तक जीऊंगा, वोट तो आपने भी मुझे एक बार दी, लेकिन जब तक मैं जीऊंगा पूरी जिंदगी नगीना के लिए लड़ता रहूंगा। मैं पूरी जिंदगी नगीना के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, नगीना के क्षेत्र में रोजगार आए, उद्योग धंधे लगे, यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार। आज हमारे यहाँ चंद्रशेखर आजाद जी आए हुए हैं, नगीना विधानसभा से वो सांसद चुने गए हैं और इसी उसमें हमने जो उनको ग्राम कुमेरा में बुलाया गया था उनको, और भी व्यक्ति थे यहाँ पे, उनका सम्मान किया गया। सभी लोगों ने उनका मिलकर सम्मान किया और आम पब्लिक ने जो उनको जिताया है इस संबंध में वो यहाँ पे आए और वो सभी के साथ, किसी गरीब व्यक्ति हों या और भी व्यक्ति हों, किसी कास्ट के हों, वो सभी के साथ खड़े रहते हैं दिन रात। किसी को कोई परेशानी हो तो वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं तुरंत। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने राज्य की जीआईडीसी पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर अब्जों रुपयों का भ्रष्टाचार किया होने का आरोप लगाया है। कुछ डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन प्रेस और मीडिया के सामने रखे हैं। गुजरात में जीआईडीसी, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एक भ्रष्टाचार की बड़ी साजिश, उसका पर्दाफाश इन डॉक्यूमेंट से हो रहा। पहले फेज में 3 अरब 50 करोड़ का गवर्नमेंट ट्रेजरी को नुकसान और भ्रष्टाचार। सेकंड फेज में 20 लाख स्क्वायर मीटर लैंड के लिए 12 अरब 20 करोड़ का भ्रष्टाचार। जीआईडीसी ने जो ये साजिश की उसके मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। चाइना ने केमिकल का प्रोडक्शन बंद करवाया। अब ये पॉल्यूशन करने वाली केमिकल की इंडस्ट्रीज को गुजरात के लोगों का जो हो कोई दिक्कत नहीं भाजपा की सरकार को। उन्होंने केमिकल वाली उन इंडस्ट्रीज को प्लॉट्स की ज़रूरत है, तो हमारा गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि छोटे कारीगर, हमारे विश्वकर्मा समाज के भाई, उनको डेवलप करने और बैलेंस डेवलपमेंट के लिए जो जीआईडीसी बनी है उसके फायदे के लिए काम करने की बजाय केमिकल जोन में पहले एक एप्लीकेशंस मांगी जाती है, एक साजिश की तहत कि हमें ये प्लॉट देने हैं, आप एप्लीकेशंस कीजिए। एप्लीकेशंस आ जाती है, उसके सिर्फ 3 महीने के बाद मैंने वो पूरा गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जो गुजराती में वो लगाया। उसके बाद जीआईडीसी का मैनेजमेंट बोर्ड रेजोल्यूशन पास करता है कि ये तो डेवलप हुई एरिया है, ये सैचुरेटेड जोन है, संतृप्त जोन है, तो यहाँ एप्लीकेशन के जरिए हम जमीन नहीं दे सकते हैं, यहाँ ऑक्शन होगी।
अगर वहां के जंत्री के रेट पे एप्लीकेशन पे अगर बेचते हैं तो 2780 रुपीज में पर स्क्वायर मीटर जाती है जगह। पर अगर ऑप्शन होता है, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, तो 10,000 से ज्यादा पर स्क्वायर मीटर में जाएगी। ये कहते हैं सैचुरेटेड है, एप्लीकेशन के जरिए नहीं देंगे। मैं स्वागत करता हूं, ऐसा ही होना चाहिए था। पर फिर एक डील होती है कि सरकार में पर स्क्वायर मीटर 7,000 रुपया क्यों दोगे, 25 लाख स्क्वायर मीटर जमीन है। तो वही मैनेजमेंट बोर्ड सिर्फ 6 महीने के अंदर फिर से रेजोल्यूशन करता है कि नहीं, ये सैचुरेटेड जोन नहीं है, यहां पे तो आप एप्लीकेशन दो और 2780 पर स्क्वायर यार्ड में हम जमीन दे देंगे।